myself Rinku Chawda, and this is our ninth lecture. And in this lecture, we will see a few more topics related to classes and objects. In this session, we will learn what do you mean by private member function and how will you access it? How will you implement the nesting of member functions, making an outside function inline, arrays within the class as a data member, and array of object class. First, we will see private member function. Okay. Now, what do you mean by this? Private means this is a function where it can be accessed only by the within that class. Okay. Out of that class, even object of the class even cannot access, even call that function. So where it will be possible to call this function. Okay. In some scenario, there may require functions to be hidden from the outside calls. For example, deleting an account in a customer file. अगर बैंक में कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको कुछ ही राइट्स देते हैं, तो किसी का अकाउंट डिलीट करने का डायरेक्ट परमिशन किसी को मिलता नहीं. Providing increment to the employees, this is also with respect to higher authorities and all. Okay, so these are the events of serious consequences, and therefore the functions handling such a task should have restricted access. Restricted access means within that class function, this private function can be accessed. But out of that class, and if you create an object of that class, you are not able to access that function. Okay, so here I have mentioned that thing. A private member function can only be called by another function that is a member of its class. Even an object cannot invoke a private function using the dot operator that I have already mentioned you, that with the help of object of that particular class, you cannot access that function call. Okay, and if you want to use a private function within that class, another public function or another private function can have access to that private member function. Okay, so we will have a one practical. Here you can see that I have declared one class with item, int number and float cost. These two are by default private, which we have learned in the last previous session. Okay. Now after that, what I have written before to the public statement, void add to number and one parameter integer z. That means before public, whatever you declare, either it is a member variable, either it is a member function, they are considered as a private things to that class. Okay, then after public, there is an int val, and there are two methods, get data and put data. Get data is having a two parameters. One is integer, second one is float. That means integer is for number and float is for cost. And put data is nothing to have as a parameter. So it is mentioned that void. It is optional whether to write void or not. Okay, and both the functions return type is void because both the functions are not returning anything. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देखा हमने, void add to number जो है वो फंक्शन जो है वो क्या है, प्राइवेट है. ठीक है, तो अभी नॉर्मली जैसे आप लोग उसका फंक्शन डेफिनेशन लिखते हो ना, ऐसे ही देखो, void item colon colon add to number, so whatever is the number plus z कर दिया, that is the task of add to number. ठीक है, get data में क्या किया, a और b की जो भी वैल्यू है और नंबर और कॉस्ट को असाइन की है, और add to number में देखो यहाँ पर कॉल किया, get data के अंदर लास्ट लाइन में add to number जो है उसमें 60 ऐड किया है, तो यहाँ पर जो एक्सेसिबल है ना get data के अंदर add to number आप यूज कर सकते हो. ठीक है, और कहाँ नहीं कर सकते वो मैं नेक्स्ट बता दूंगा. नेक्स्ट इज पुट डेटा फंक्शन. On your right side there is one function put data. With the help of that put data you have printed value of number and cost. With a message print the value of number and float. ठीक है, अभी int main के अंदर देखो item x. What do you mean by that item x? Item x nothing but a object of item. X is an object of item class. Now
यहाँ पर आप x डॉट वेल इज इक्वल टू 10 कर सकते हो। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वेल करके जो वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, वो पब्लिकली डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर। ठीक है, इसीलिए आप मेन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन में उसका वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, कमेंट करके लिखा है x डॉट नंबर इज इक्वल टू 100 because this statement will not work because number is a private data member of a item class. Same way, if you try to call x dot add to number method, x dot add to number method अगर आप कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपको इलीगल के साथ साथ ये आप कर तो नहीं सकते हो, प्लस वो एरर भी देगा, प्राइवेट एक्सेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकली मैं रन करके दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या एरर आने के चांसेस है। उसके बाद एक्स डॉट गेट डेटा, एक्स डॉट पुट डेटा। एक्स डॉट गेट डेटा में 100 और 75.5 जो है वो मैंने पास किया, तो 100 जो है गेट डेटा यानी कहाँ जाएगा, गेट डेटा की फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, तो यहाँ पर ए में 100 आया, बी में 75.5 आया, तो ए और बी की वैल्यू नंबर ऑफ कॉस्ट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, और साथ में एडिटिव फंक्शन भी कॉल होगा जो नंबर में 60 ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में पुट डेटा से मैंने डिस्प्ले करवाया आउटपुट 160 is nothing but a number value and 75.5 is the cost। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल में करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर दिस इज माई क्लास। ठीक है, इसमें ये 3 चीज है, दिस 3 थिंग्स आर प्राइवेट। ठीक है, ये 3 चीज जो है वो ये फंक्शन में, ये क्लास में ये 3 फंक्शंस दिए हैं ना, 2 फंक्शंस, उसी के अंदर उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर से आप ये 3 चीज नंबर, कॉस्ट और एक्टिव नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, इवन इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सो यहाँ पर ऐड टू नंबर का डेफिनेशन दिया, इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ प्लस ऑपरेटर। गेट डेटा में देखो ऐड टू नंबर 60 किया, पुट डेटा, और देखो यहाँ पर अभी मैं उसको नॉर्मली ये वाला रन करती हूँ, तो आप एक बार देखो आया आंसर। नंबर असाइन वैल्यूज टू नंबर एंड फ्लोट, वो असाइन हो गया। उसके बाद हमने जो भी वैल्यू असाइन हुई वो प्रिंट हुआ है, नंबर इज इक्वल टू 116, कॉस्ट इज इक्वल टू 75.5। अभी मैं इसको अनकमेंट करती हूँ। I will try to execute even access a variable or data member val is a type of public, वो तो बराबर है, x dot val is equal to 10 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अभी इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट val is equal to x dot val ndl। तो मैंने रन, देखो val की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अभी सेम चीज मैं नंबर के साथ करना चाहती हूँ, इन दोनों को मैंने ऐसे ही रखा है। चलो नंबर को मैंने असाइन किया 100 वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखो कंपाइलेशन टाइम पे क्या बोलेगा, बोला ना कि नंबर इज अ प्राइवेट। ठीक है, और इसकी कंटिन्यूएशन में वो एरर दी कि आप दिस इज द context you cannot access have a private data member। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ये मेथड हम कॉल करके देखो इसमें भी एरर क्या दिया कि दिस फंक्शन इज प्राइवेट। ठीक है, दैट मीन्स आपको अगर एक्सेस करना है तो एड टू नंबर जो है प्राइवेट फंक्शन है, तो गेट डेटा और पुट डेटा जो है वो उसी क्लास के दूसरे फंक्शंस है,
उसके अंदर आपको अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वापस से कमेंट करते हैं हम। और यहाँ पे गेट डेटा जैसे ही कॉल होता है तो फ्लो कहाँ पे जाएगा इसका, ये यहाँ पर आएगा उसका कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा मैसेज नंबर इज इक्वल टू a, cost इज इक्वल टू b एंड add to number इज इक्वल टू 60। लेट्स से आई एम डूइंग इट 20। ठीक है, तो यहाँ से फ्लो वापस से कहाँ जाएगा, एड टू नंबर फंक्शन पे। तो हियर इज द एड टू नंबर फंक्शन। एड टू नंबर में z में क्या आया, 20 आया, दैट 20 एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ नंबर, दैट इज 100। 100 प्लस 20 दैट इज 120। नंबर में 120 स्टोर हो, यानी जब भी हम उसके बाद हमने कॉल किया है पुट डेटा, तो पुट डेटा पे जाएगा तो ये नंबर और कॉस्ट प्रिंट करेगा। तो नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 120 एंड कॉस्ट विल बी 75.5। सो वी विल रन। देखो आ गया 120 and 75.5। so this is the way you can do a access of private data member as well as function। ये दोनों डेटा मेंबर है प्राइवेट, और ये है वो फंक्शन कौन सा है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। ठीक है, so this is the example of private member function। ठीक है, now next is nesting of member function। Nesting of member function can be same as calling one function from the another function। Okay, so a member function can be called by using its name inside another member function of the same class। This is known as nesting of member function। यहाँ पे क्लास का कोई एक फंक्शन है, उसके अंदर से क्लास का दूसरा फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, और क्लास का वो फंक्शन आइदर प्राइवेट हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। यानी यहाँ पे प्राइवेट होना जरूरी नहीं है। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन में जब कोई एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है तो उसको प्राइवेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, दोनों फंक्शन जो है वो एक ही क्लास के। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो मैंने क्या किया। यहाँ पर है क्लास सेट m एंड n, दो इंटीजर वैल्यू ली। ठीक है, उसके बाद पब्लिकली मैंने तीन फंक्शंस कॉल मेंबर फंक्शंस बनाए, इनपुट डिस्प्ले लार्जेस्ट। तीनों में से किसी को भी पैरामीटर नहीं चाहिए। लार्जेस्ट में बोलेगा m और n दोनों में से कौन सा ग्रेटर है वो रिटर्न करेगा, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। इनपुट और डिस्प्ले दोनों वॉइड टाइप। ठीक है, तो लार्जेस्ट का जो फंक्शन है उसका बॉडी हमने लिखा, डेफिनेशन लिखा, इफ m ग्रेटर देन n रिटर्न m एल्स रिटर्न n। तो ये हो गया। उसके बाद इनपुट में क्या किया हमने, यूजर से m n की वैल्यू ली इनपुट फंक्शन से। ठीक है, cn की हेल्प से। ठीक है, cn इज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड cout इज फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन टू द कंसोल, दैट मींस ऑन योर स्क्रीन। अभी डिस्प्ले फंक्शन में देखो क्या किया है। डिस्प्ले फंक्शन में मैंने दोनों m और n दोनों की वैल्यू प्रिंट नहीं है, दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसी का वैल्यू प्रिंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू लार्जेस्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर लार्जेस्ट फंक्शन देखो यहाँ पर पब्लिक है। लार्जेस्ट कैन बी अ प्राइवेट, कैन बी अ पब्लिक। यानी नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन में क्या है कि कोई भी फंक्शन है क्लास का, वो फंक्शन दूसरे फंक्शन जो है क्लास के उसके अंदर उसको कॉल किया जा सकता है। जैसे डिस्प्ले के अंदर लार्जेस्ट कॉल किया, इनपुट के अंदर भी लार्जेस्ट कॉल कर सकते हो, लार्जेस्ट के अंदर डिस्प्ले भी कॉल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन, हाउ यू वांट टू प्रिंट द आउटपुट। नेक्स्ट इज arrays within classes as data member। that means what, array तो सबने पढ़ा है। what do you mean by array? array is nothing but a collection of elements where the data type of each element has to be same। ठीक है, तो जैसे कैरेक्टर एरे, इंटीजर एरे, फ्लोट एरे, तो that array can be a data member of your class। the arrays can be declared as a public, private, protected members of the class। so this is the example। ये मैंने देखो ये वाले एग्जांपल में एम्प्लॉय का क्लास जो बनाया है उसमें मैंने देखो कैरेक्टर एरे लिया, कैरेक्टर एरे नेम 26 जो मैंने बोल्ड करके रखा। ठीक है,
दिस इज अ वेरी इजीएस्ट थिंग। इसमें कुछ ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्राइवेट मैंने क्या डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर एरे नेम, वो एम्प्लॉय का नाम स्टोर करेगा, इंट एज एंड सैलरी, इंट एज और सैलरी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर, गेट डेटा और पुट डेटा। तो वैल्यूज गेट डेटा का डेफिनेशन देखो, सी आउट करके तीनों की वैल्यू रीड की, पुट डेटा से तीनों की वैल्यू डिस्प्ले की, ठीक है। और यहाँ पे मेन में क्या किया है, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय ईएमपी, और उसके बाद emp डॉट गेट डेटा एंड emp डॉट पुट डेटा। तो मैंने जो भी एंटर किया होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, वो आउटपुट की स्क्रीन में दिखाया है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस प्रोजेक्ट्स एरे एज em और सेपरेट। यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय इज अ क्लास, टू प्राइवेट डेटा, थ्री प्राइवेट डेटा मेंबर, नेम एज एन सेल। अब नेम जो है वो नेम कैरेक्टर एरे है, नेम कोई भी ए बी ऐसे नहीं हो सकता है। नेम कैन बी ए बी सी, नेम कैन बी पी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। गेट डेटा और पुट डेटा दोनों का फंक्शन डेफिनेशन लिखा, दोनों का लिखा, एंड एम्प्लॉय का यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बना, इंट की यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है। और emp डॉट गेट डेटा और emp डॉट पुट डेटा, इसको हम कंपाइल कर, हाँ देखो दूसरे जितने भी कंपाइलर्स यूज करेंगे उसमें डॉट एच अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने नेम दिया PQR, एज दिया 30 एंड सैलरी दिया 20,000। देखो प्रिंट हुआ PQR 30 एंड 20,000, ठीक है। सो दिस इज द एरे एज अ डेटा member of your class. Next is array of objects. ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं, क्लासेस के, ठीक है। तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स देखे उसके अंदर वी विल हैव ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्लास के एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, so we can go for the array of objects of a class, ठीक है। An array of type class can be created and it is also known as an array of objects, ठीक है। The array of type class contains the objects of the class as its individual element। जैसे हम array 0 रेफर करेंगे तो क्लास का पहला है ऑब्जेक्ट, A1 रेफर करेंगे तो क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारे पास क्लास के एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा। एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो नॉर्मली इंटीजर एरे कैसे बनाते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, सेम वे यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी उसी तरह से हैंडल होती है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाला स्ट्रक्चर गेट डेटा पुट डेटा और एम्प्लॉय क्लास वो सब तो सेम ही है, ठीक है। वो प्रीवियस एग्जांपल में जो देखा ना हमने उसी का सेम ही है। एम्प्लॉय में 3 डेटा मेंबर है, नेम एज अ कैरेक्टर एरे, एज एंड सैलरी एज अ इंटीजर, गेट डेटा एंड पुट डेटा। और गेट डेटा पुट डेटा से हमने यूजर से डेटा ले, तो ये तो हमारा सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ पे है, इंट मेन में देखो एम्प्लॉय ईएमपी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ दिया है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एम्प्लॉय के 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब जब भी आप इसको ट्रैवर्स करोगे, सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा पता
सेव की नई फाइल में और मैंने मीन को चेंज कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा प्रोग्राम। IO स्ट्रीम नेम स्पेस एम्प्लॉय क्लास गेट डेटा यानी कीबोर्ड से डेटा लेना है, पुट डेटा यानी स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करना है। देखो अभी इसके बाद यहाँ पे देखो ये लाइन क्या करेगा, इज द array of objects of class employee with size 3, यानी कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, टोटल 3। ठीक है, अभी 3 है, तीनों एम्प्लॉय के डेटा मुझे रीड करने हैं। ठीक है, तो तीनों एम्प्लॉय के डेटा रीड करना है, तो यहाँ पर EMP 0, उसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय 1 डिटेल। ठीक है, EMP अगर 1 रेफर करते हैं तो एम्प्लॉय 2 होगा, और EMP 2 रेफर करते हैं तो एम्प्लॉय 3 होगा। तो ऐसे हमारा 3 एरे का ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे एम्प्लॉय क्लास के। मेन सेम है EMP, तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 0 1 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लिया है, एरे को नॉर्मली आप लोग फॉर लूप लेते हो। ठीक है, तो फॉर लूप कितनी रहेगी, 0 to 3, यानी लेस देन इक्वल टू 3 नहीं, लेस देन 3 है, यानी 0 1 2 तक घूमेगा। तो यहाँ पे प्रिंट किया एम्प्लॉय द डिटेल्स ऑफ 1 2 3। देन अभी तक क्या करते थे हम लोग, ऐसे फंक्शन को कॉल करते थे, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट नेम डॉट द मेथड नेम, फंक्शन नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए गेट डेटा करना है, 0 1 और 2। ठीक है, तो सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पर। अगेन फॉर लूप लिया है, क्यों फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप है एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रिंट करने के, एम्प्लॉय आई। ठीक है, एम्प्लॉय आई क्या करेगा, आई का वैल्यू जब जब चेंज होगा तो एम्प्लॉय 0 एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 EMP 0 EMP 1 EMP 2, उसके रिस्पेक्टिव पुट डेटा कॉल। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय 1 की डिटेल पूछता है, ABC डाला मैंने, एज इज 20 एंड 10,000 इज द सैलरी। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग फॉर एम्प्लॉय 2। ठीक है, तो ये पहली फॉर लूप जो है उसके बेसिस पे ये सब कुछ कॉल हो रहा है। QR 30, तो मैंने डैश दे दिया इसलिए वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, वापस से करते हैं, ABC 30 10,000 QR 20 10,000 XYZ 25 एंड 20,000। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ पूरा, एम्प्लॉय 1 की डिटेल, एम्प्लॉय 2 की डिटेल, एम्प्लॉय 3 की डिटेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये मैसेज जो दिया है ना, उससे एम्प्लॉय 1 2 3 प्रिंट होता है, और पुट डेटा क्या करेगा, प्रिंट नेम एज और सैलरी की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज सेम एज स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर का एरे जब बनाते थे ना, सेम वे यहाँ पे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एरे बने, और एरे को जब भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसको रेफर करना है तब क्या यूज करते हो, सबस्क्रिप्ट विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, so this is the example related to array of an object of a class. Next is making an outside function inline. अभी inline functions आपने पढ़ा था, what is the meaning of inline? Whenever you want a function with a single statement or two statements, not more than that, at that moment you will use that function as an inline function. So that facility is also possible with the class also. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, नंबर एंड कॉस्ट। ओके, नाउ गेट डेटा पुट डेटा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गेट डेटा में 2 ही लाइन है, नंबर को n, नंबर और कॉस्ट की वैल्यू असाइन होती है। तो गेट डेटा को हम इनलाइन फंक्शन बनाना है ना, तो जब क्लास के अंदर फंक्शन का प्रोटोटाइप दोगे तब इनलाइन नहीं लिखना, कब लिखना है, वॉइड
जब उसका डेफिनेशन लिखते हो ना, नीचे देखो इसका void inline item colon colon get data n and c, ठीक है। तो गेट डेटा का दो ही स्टेटमेंट है, तो वो इसको एज अ इनलाइन फंक्शन कंसीडर करेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, नथिंग टू चेंज एनीथिंग, ना ही डिक्लेरेशन में ना ही कॉलिंग में। लेकिन जब फंक्शन डेफिनेशन लिखते हो, जब फंक्शन की एक्चुअल स्टेटमेंट बॉडी लिखते हो, उस टाइम के अगर एक या दो ही स्टेटमेंट है फंक्शन के, तो उसको आप इनलाइन फंक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो लिखना रहेगा। आपकी क्लास का डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद जब फंक्शन डेफिनेशन लिखोगे तब इनलाइन वर्ड सिर्फ आगे लिखना है क्लास के आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल टू परफॉर्म, दैट इज swap values of two variables using class, and this is the a small program. Here you can see I have created one class swap2, okay, and with the two data members a and b। मुझे जो भी दो a और b की वैल्यू जो भी है ना, स्वैप करके b की वैल्यू a में और a की b में डालनी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फंक्शंस बनाया है, सेट वैल्यू, स्वैप एंड डिस्प्ले। सेट वैल्यू क्या करेगा, जो भी यूजर डालेगा उसको a और b में असाइन करेगा, ठीक है। स्वैप वैल्यू क्या करेगा, दोनों की वैल्यू चेंज करेगा, और डिस्प्ले में दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सेट वैल्यू का फंक्शन देखो, इंट एक्स और वाई जो आता है यूजर के पास से, वो यहाँ पे ए और बी में असाइन होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में ए और बी को सिंपली सी आउट से प्रिंट किया। देन स्वैप फंक्शन देखो, यहाँ पे स्वैप का लॉजिक आपको पता है, जिस टाइप का डेटा है टेम्पररी उसका एक वेरिएबल बनाओ, तो टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो स्वैप फंक्शन को कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है वही ऑब्जेक्ट के ए और बी यहाँ पे रेफर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंट मेन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाया है स्वैप2 का, फिर सेट वैल्यू का फंक्शन कॉल किया एस से, एस डॉट सेट वैल्यू 10 और 20। तो 10 किसको असाइन होगा, वाया एक्स ए को असाइन होगा, और 20 किसको असाइन होगा, वाया वाई बी को असाइन। उसके बाद स्वैप फंक्शन मैंने कॉल किया, दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। उसके बाद मैंने एस डॉट डिस्प्ले किया है, और ए और बी की वैल्यू मैंने स्टोर की। देखो आउटपुट में यहाँ पे ए का 20 बी का 10 है, लेकिन जब सेंड किया था, जब सेट वैल्यू किया था, तब वैल्यू क्या था 10 20। तो यहाँ पे अभी स्वैप हो, चेंज हो गया, ठीक है। So it's a time to write down the questions regarding this video, whatever you are having a doubt, okay, and we will discuss it when we have a Google Meet, okay. Thank you for watching this video.